SNAP examination, or for that matter, NMAT examination, I'm pretty sure that you guys are already preparing for the examination and things are making sense. So I'm going to introduce you that what the examination is all about and how to approach the examination. Of course, you guys know already that what is the marking scheme, how many questions are going to be there. You guys know that, okay? You guys are aware of that fact. But yes, it is good to know few factors before you start preparing for this examination sincerely. Now, moving on, the first thing which I want to discuss here is for students who are attempting SNAP examination, that take a SNAP mock test. Okay, you can attempt a SNAP mock test. It is easily available to you guys, and once you attempt a mock test, you see where you stand. Now, I know one student that he has attempted snap examination. He shared his ideas, views, where he's lacking and what needs to be done. So this will tell you your strong and weak areas. Start with strengthening your strong areas. You need to achieve 100% accuracy in all the topics that are your strength. Now here guys, please pay attention that do not try to do something new. What I mean to say is this, that this is the biggest mistake what people do. Let's say my strength is algebra and my strength is number system, but somewhere I am not that great in arithmetic. I am fine in geometry. So what I will do, I will focus on algebra, number system and geometry. I will try to get those many marks which will help me to get the consideration for the next round. I hope you guys are getting my point. What people do, usually what students do, they feel that okay, arithmetic is my weakness or it's where I lack. So let me do one thing. Let me invest completely my time, energy, and everything for arithmetic. And there is where they go wrong. So what happens is at the end, when you attempt or when you put in so much of efforts in something which you are not strong or you're not good at, whatever you're good at, you miss out on that. And then in examination, both the things are went for a toss. I hope you guys are understanding what I'm trying to explain here. I'm not saying that you skip or you do not study what is your weakness, but do not get crazy for that. So that is the first thing. First point is you attempt a mock, and then you know what is your strength, what is your weakness, and then ask yourself what all those questions are there which you can study and make the most out of it in the examination. If you think that okay, ये मुझे नहीं आता, अभी मैं आपसे सारा टाइम इसमें लगाऊंगा और मैं कर लूंगा, तो जो आता है वो भी पानी में चले जाएगा. Guys, understand, MBA examination is not a regular examination like your school or college. It is an examination that makes you compete with each other. तो अपने strength पे focus करो, ठीक है? Second pointer, you won't be able to cover all the topics well. ये एक और pointer है कि अभी कुछ दिनों में एग्जाम है या 2 महीने में तुमको सारे टॉपिक करने हैं. भाई वो पॉसिबल नहीं है. You won't be able to cover all the topics well. Of course, you can cover all the topics, but this is the point. And here, accuracy is important. So, go through some previous year SNAP question papers to know topic wise weightage and types of question asked from areas that are your weakness. Focus more on those topics that have more weightage. I hope you guys are getting it. For example, once again, I'll write it here. For example, algebra मेरा strength है, arithmetic मेरा strength है. I'm just giving you an example. Geometry मुझे पल्ले नहीं पड़ता, number system मुझे कुछ समझ में नहीं आता. Fine. If you see that most number of questions are from these two topics, stick to it. This is your strength. Of course, you will study a little bit of geometry. Of course, you will be studying number system also, but you will be banking on your strength. The same mistake people do in CAT examination. The same mistake people have done in CT examination. आसानी से ना लोगों को गाली देने के लिए मौका मिल गया है. फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें, अब कई लोगों ने सीटी का एग्जाम दिया ही होगा, तो मैं एक एक्सप्लेन करता हूँ. 200 क्वेश्चंस रहते हैं. लोग इस बात के लिए रो रहे हैं, इस बात से नाराज हैं कि भाई 10 क्वेश्चन ऐसे आए जो उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किए थे, 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा किसी और टॉपिक के आ गए, 10 क्वेश्चन ऐसे थे जो किसी और टॉपिक के नहीं आए. लेकिन वो इन 30 क्वेश्चंस के लिए उन 170 क्वेश्चंस पे फोकस नहीं कर रहे जो इजी थे. ब्लेम करना आसान है कि हाँ भाई ये वाला डिफिकल्ट था, ये था, वो था. तुम अपने, अब सब लोगों ने सीटी का पेपर दिया होगा मोस्टली, या तो नहीं दिया. अपने आप से एक सवाल पूछो, दिल पे हाथ रखे, क्या वो 200 में से 150 क्वेश्चन थे जो तुम अटेम्प्ट कर सकते थे? अगर तुम अटेम्प्ट कर सकते थे तो तुम्हारी गलती है, एग्जामिनर की गलती नहीं है. अब कई लोग
अब मैं जानता हूँ यहाँ पे ऐसे फैकल्टीज हैं जो पढ़ाते नहीं है ढंग से और कॉन्सेप्ट पे फोकस नहीं करते और बाद में खुद पे ना आए तो सीटी के ऊपर गाली दे देते हैं, एग्जामिनिंग बॉडी को गाली दे देते हैं सिर्फ स्लॉट। अब एक और एक सिंपल सा फंडा है, आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू द एग्जांपल। सिर्फ फर्स्ट डे स्लॉट टू में क्वांट के क्वेश्चन ज्यादा आए, ठीक है, माना कि क्वांट किसी का वीकनेस है ज्यादा है, लेकिन उन लोगों ने क्वांट के क्वेश्चन ज्यादा किए तो उन्होंने ट्रेडिशनल लॉजिक के क्वेश्चन घटा दिए। अब जो पजल वाले क्वेश्चन थे वैसे भी लोगों से ज्यादा नहीं होते थे, टाइम कंज्यूमिंग होता था, और थोड़ा बहुत तो आप क्वांट पढ़ के जाते ही हो। माना कि क्वांट के क्वेश्चंस ज्यादा थे लेकिन उसमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस ऐसे थे जो करने लायक थे। तो तुम अगर ये चीज पकड़ के चल रहे हो, इफ यू गाइज आर प्लानिंग एंड स्टडिंग फॉर स्नैप एग्जामिनेशन, या तो आज के ग्रुप में बस आए हो कि हाँ भाई ये बंदा कुछ बता देगा कि ये 5 क्वेश्चन कर ले, ये 6 कर ले, ये 8 कर ले, तुझे सिम्बोसिस से कॉल आ जाएगा। बहुत सारे सी नाम के क्लासेस है यूट्यूब पे, वो चलते हैं, उनके पास जाइए, उनके ज्ञान लीजिए और बाद में सिम्बोसिस। फिर बताता हूँ क्या होगा, एक और चीज, एक पैटर्न बताता हूँ। पहले स्नैप का एग्जाम होगा फर्स्ट स्लॉट का, उसमें कुछ बच्चे रोएंगे कि गलत आ गया। फिर स्लॉट 2 का होगा, फिर उन दो ग्रुप में झगड़ा होगा कि स्लॉट 1 इजी था, स्लॉट 2 डिफिकल्ट था, ये था वो था, नॉर्मलाइजेशन होगा, सर आके बोलेगा हाँ होना चाहिए। खैर, गधों की कमी नहीं है दुनिया में। There is no sectional time limit in Snap, so you won't have the timer running. Hence, you need to time yourself in the exam. Divide the 60 minutes in such a way that you have enough time to solve each section. Try to meet the sectional cutoffs first. अब यहाँ पे एक और चीज है, सिंपल सा वाला फंडा है, 60 क्वेश्चंस है। कितने क्वेश्चन है क्या है, लेट्स टॉक अबाउट इट इन सम टाइम, बट 60 मिनट्स है। अब यार 60 क्वेश्चंस है। अब अगर तुम में से कोई ऐसा एक चमन है जो एक क्वेश्चन के लिए 2 मिनट लगा रहा है या 3 मिनट लगा रहा है, तो मेरे भाई 1 मार्क ही मिलने वाला है राइट होने पे, लेकिन 3 मिनट जो वेस्ट कर दिए उसका क्या। एमबीए एंट्रेंस एग्जामिनेशन इज नॉट अ टेस्ट ऑफ योर इंटेलिजेंस। वंस अगेन आई रिपीट, कोई भी एमबीए का एंट्रेंस एग्जामिनेशन इज नॉट अ टेस्ट ऑफ योर इंटेलिजेंस बट द टेस्ट ऑफ योर स्मार्टनेस, test of your managing things. You are not applying for olympiad, you are not applying for a mathematician or for that matter written course, but a manager क्या करता है कि अपनी resources पे focus करता है, अपनी strength पे, जो situation है, जो condition है और चीजें manage करता है। वही सीटी एग्जाम है, वही कैट एग्जाम है, और गेस व्हाट, वही स्नैप और एनमैट है। अगर तुम्हें वो, अब यार पता है होता क्या है कि दुनिया में 10 में से 6 लोग अत्यंत गधे होते हैं, मैं वो सी वर्ड यूज नहीं करूंगा, 2 को थोड़ी बहुत अक्ल होती है और 2 होते हैं जो स्मार्ट होते हैं। बट ऑब्वियस सी बात है, स्नैप को वो 2 स्मार्ट बंदे चाहिए, और वो जो 2 बाकी रह गए वो कोशिश करेंगे, जो 6 है वो गाते रहो। अब तुम डिसाइड करो कि तुम 6 में आते हो कि 4 में आते हो कि 2 में आते हो, मर्जी तुम्हारी। ठीक है, तो यहां पे सबसे बड़ी बात है कि तुम्हें, अब एक और चीज पता है मैंने क्या बोला, अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस करो। अगर तुम्हारी स्ट्रेंथ पे तुम्हारा फोकस है तो तुम 60 मिनट्स में उन क्वेश्चंस को जल्दी कर पाओगे, ज्यादा एक्यूरेसी से कर पाओगे जो स्ट्रेंथ है। तो माना 1-2 क्वेश्चन जो तुम्हें, या 5-6 क्वेश्चन जो तुम्हें लगता है कि मैं कर सकता हूं या नहीं कर सकता, फिर तुम आके आराम से उन्हें कर सकते हो और तुम अपना अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो गाइज प्लीज मेक श्योर यू डू दैट। The overall difficulty level of SNAP examination is moderate. SNAP difficult नहीं आता। मैं तुम्हें फिर से ये बात क्लियर करता हूं। हाँ, जिन्होंने पढ़ाई नहीं की है, जिन लोगों ने कोई ना कोई स्ट्रैटेजी लगाई है, उनके लिए डिफिकल्ट होगा। सिंपल सी बात है, एक एग्जाम में कुछ लोग टॉप करते हैं, कुछ लोग फेल भी करते हैं। जो फेल किया उसके लिए डिफिकल्ट था, जो टॉप किया उसके लिए इजी था। बट देन द ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल ऑफ स्नैप एग्जामिनेशन इज मॉडरेट। द इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग, ये थोड़ा गलत हो गया, लॉजिकल रीजनिंग आर यूजली इजी वाइल कॉन डीआईडीएस इज मॉडरेट टू टफ। अब मैं अगर, अब मैं अपना एक फंडा बताता हूं, अगर आज स्नैप का एग्जामिनेशन में अपेयर करूं, आई एम एन इंजीनियर बट मुझे कौन पसंद नहीं आता, दैट्स द रीजन आई एम अ वर्बल फैकल्टी, एंड इन फैक्ट आई एम so close to the language English. I do not feel comfortable while speaking in Hindi, but I have to speak in Hindi while making videos and while teaching because I want people to understand. Not everybody is fluent and not everybody understand what I say in English completely. That's the reason I use Hindi. But then of course quant is a part, so what I'm going to do, मैं देखूंगा DIDS के questions जो मेरी strength है वो देखूंगा। यार 10 जितने भी क्वेश्चन होते हैं 10 तक यार निकाल के निकलो यार, आगे बढ़ो।
कट ऑफ, अब कल बोलेंगे सर कट ऑफ क्या, कट ऑफ क्लियर हो जाएगा, कट ऑफ के पीछे मत भागो, सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ के पीछे भागो, वो चीज हो जाएगी। ज्यादा चीजें कॉम्प्लिकेट मत करो। आई गिव यू वन मोर एग्जाम्पल। MSCT लॉ 3 ईयर का एग्जामिनेशन हो रहा है 4 अक्टूबर को, मैं भी अपेयर कर रहा हूं। मैं घर पे खाली बैठा था, बोर हो रहा था, मैंने एग्जामिनेशन फॉर्म भर दिया। मैंने सोचा कि चलो बैठे बैठे लॉ कर लेंगे। अब ना अचानक से वो सब यूट्यूब वीडियोस आ रहे हैं, ये कर ले स्कोर आ जाएगा, इसको देखे बगैर एग्जाम ना दें, 3 दिन में 20 मार्क कैसे बढ़ाएं, 4 दिन में 50 मार्क कैसे बढ़ाएं। एग्जामिनेशन में जाने से पहले ये सब लेके आए। मैं वो वीडियोस, और मैं ग्रुप्स में हूँ, मुझे बच्चे फॉरवर्ड भी करते हैं, कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं, मैं वो देखता ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है वो सब कुटियापा है, वो सब ऑलरेडी MBA में भी चल रहा है। मैं अपनी पढ़ाई पे फोकस करता हूँ, मैं दिमाग चिल करता हूँ, जीके सुन के जाऊंगा, जो आता है करके जाऊंगा, मुझे पता है वही आने वाला है। ठीक है, सो देयर दिस ईयर देयर विल बी नो स्पेशल क्वेश्चन। स्नैप में स्पेशल क्वेश्चन होता था, डू नॉट वरी अबाउट इट। ठीक है, स्टिक टू व्हाट यू नो। हाउएवर द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द क्वेश्चन पेपर इज एक्सपेक्टेड टू बी हाई। नाउ व्हाई दे आर सेइंग एक्सपेक्टेड टू बी हाई? ताकि तुम पढ़ाई करो, ताकि तुम लाइटली मत लो, पढ़ाई करो। सो चूज द क्वेश्चंस वाइजली, अटेम्प्ट ओनली दोज व्हिच यू कैन सॉल्व विद मैक्सिमम एक्यूरेसी। लोग यही बोलते हैं ना, एग्जाम में वो वाला क्वेश्चन करूंगा जो मैक्सिमम एक्यूरेसी के साथ होगा। तो भाई पढ़ो भी ना वही क्वेश्चन जो तुम्हें मैक्सिमम एक्यूरेसी देगा। इट इज नॉट अबाउट क्वांटिटी, इट इज ऑलवेज एंड विल बी ऑलवेज अबाउट क्वालिटी। कैट में भी वही है। कैट में तुमने 5 टॉपिक पढ़े हैं, लेकिन वो 5 टॉपिक इतने जबरदस्त पढ़े, कुछ भी पूछो तुम्हें IIM से कॉल आ जाएगा। और वहीं पे एक बंदा जो 15 टॉपिक करके गया, लेकिन एक भी टॉपिक उतना अच्छे से नहीं आता, उसका कुछ नहीं होने वाला। You must also develop the skill of solving questions through elimination method. अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और ये मैं सबसे ज्यादा हाईलाइट करना चाहता था हूं कि आप लोगों को अपना जो डेवलप, पता है। Now one more thing I share it with you guys. When I prepare for the entrance examination, or when I prepared for the management entrance examination, what I used to do, मैं पेन और पेपर को कम से कम हाथ लगाता था। मैं क्वेश्चन देखता था ऑप्शंस देख के कि हाँ भाई ये हो सकता है आंसर, ये वो, और एलिमिनेट करता था। तुम जितना कम पेन पेपर को हाथ लगाओगे, उतनी तुम्हारी चांसेस बढ़ेंगे ज्यादा कॉन्फिडेंस के, ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की, क्योंकि सारी लड़ाई टाइम से भी है। 60 मिनट है, 60 क्वेश्चंस है। सो जो बंदा कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा राइट कर पाएगा, उसका स्कोर ज्यादा आएगा। सो ट्राई टू डेवलप दैट स्किल दैट यू डू नॉट नीड टू यूज पेन एंड पेपर फॉर एवरी स्मॉल थिंग। हम लोग को स्कूल से कॉलेज से आदत पड़ी होती, तो पता है लोग छोटे से छोटे कैलकुलेशन 2 + 2 4 कर रहे होते हैं, उनके हाथ में फिर कुछ भी नहीं आने वाला। अब ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है, ठीक है। देयर आर ऑलवेज 2 ऑप्शंस टू कंसिडर सीरियसली, रेस्ट आर इल्यूजन। इट्स नॉट जस्ट अबाउट द एग्जामिनेशन, बट इट इज अबाउट द लाइफ ऑल्सो। अब एग्जाम में तुम्हें एक क्वेश्चन रहेगा, किसी किसी एग्जाम में 4 ऑप्शन होते हैं, किसी किसी में 5 होते हैं। अब लोग क्या सोचते हैं, अरे 5 है तो ज्यादा डिफिकल्ट हो गया, या 6 कर लो यार, 7 कर लो, 8 कर लो। लेट्स टेक अ बेसिक एग्जाम्पल कि तुम्हें 4 ऑप्शन है। तुम्हें एक बात बताता हूँ, 4 ऑप्शन नहीं है। अगर तुमने क्वेश्चन थोड़ा भी समझा और थोड़े भी अक्ल लगाई, तो तुम ऑप्शंस देखोगे ना, तो 2 तो एलिमिनेट हो जाएंगे। कंफ्यूजन हमेशा आखिरी 2 में रहता है। अब लोग बोलेंगे सर इससे फायदा क्या? लेट्स से इफ देयर आर 4 क्वेश्चंस, फॉर ईच क्वेश्चन टू गेट राइट द प्रोबेबिलिटी इज 25%. So if I eliminate 2 options, anyway my probability has increased to 50%. मतलब अब चांसेस ज्यादा है मेरे आंसर राइट होने के। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस। देयर आर ऑलवेज 2 options टू कंसिडर सीरियसली, रेस्ट आर illusion. I keep things simple, guys. I do not make things quite flashy. I do not want to complicate things, okay? So I hope till now things are making sense. Let me stop the slide and let me actually निकाली। अब ये मैंने अभी जाके वेबसाइट से स्क्रीनशॉट लेके लिया है। snaptest.org दिख रहा है ऊपर, ये दिख रहा है। ये मैं क्यों बता रहा हूं अभी से सुन लो, बाकी लोगों को जो कुटियाप करना है वो करने दो, ठीक है। यू प्लीज पे अटेंशन। और यहाँ पे ये सब सबको पता होगा कि, और बस ऑब्वियस सी बात है यार, अगर तुम अभी MBA का सोच रहे हो, तुमने कोई ना कोई एग्जामिनेशन दिया होगा, पढ़ाई की होगी या कुछ किया होगा। अगर तुम उन लोगों में से हो जिनको कल रियलाइज हुआ है कि चलो यार अब इस बार साल MBA कर लेते हैं, ठीक है तुम कर सकते हो। लेकिन 2 चीजें मायने रखती हैं।
तुम्हारा एकेडमिक बैकग्राउंड कैसा है, तुमने स्कूल में ध्यान कैसा दिया ताकि तुम कवर कर सको। दूसरी चीज, अगर वो भी नहीं है तो तुम कितने एफर्ट्स पुट इन कर सकते हो, और तुम दोनों चीजें नहीं कर सकते तो तुम स्नैप बॉडी को पैसा दे के आ रहे हो, ठीक है, या तो कहीं से, तो अगर तुम मॉक ले रहे हो, एनरोल कर रहे हो, तो तुम्हें पैसा बना रहे हो, ठीक है। मैं झूठ घुमा फिरा के बात नहीं करता, गाली मुंह पे देता हूं। 15 क्वेश्चन आएंगे वर्बल के, 1 क्वेश्चन फॉर ईच राइट, टोटल मार्क्स आर 15। एनालिटिकल लॉजिकल रीजनिंग 25 क्वेश्चन, 1 मार्क। और इसका जो रीजनिंग है ना, वो मोस्ट प्रोबेबली वर्बल से ज्यादा इन्फ्लुएंस रहता है। क्रिटिकल रीजनिंग, स्टेटमेंट अजम्पशन, कंक्लूजन टाइप के क्वेश्चन रहते हैं। और बेसिकली अगर तुम्हारा वर्बल सही है तो 40 में से, या 40 में से एटलीस्ट 30 से 35 क्वेश्चन तुम्हारे वर्बल से डायरेक्टली इनडायरेक्टली रहेंगे, ठीक है। फिर क्वांट के ऊपर, जो डेटा सफिशिएंसी के ऊपर 20 क्वेश्चन है। अब तुम टारगेट करो। अब लोग बोलेंगे सर मैं टारगेट कैसे करूं, मैं तुम्हें दोनों सिचुएशन देता हूं, ठीक है। आई विल बी गिविंग यू बोथ द सिचुएशन। टाइम कितना लगेगा दैट वी विल डिस्कस। आई विल टॉक अबाउट a basic plan. But then it is my suggestion. You think what suits you the best. At Vision MBA, or this guy Ashish never believes in that one size fits all. For example, let me give you two situations. First is your verbal is bad and your quant is good. तुम्हारा quant जबरदस्त है, verbal weak है, ठीक है, कोई बात नहीं। कोशिश करो 20 में से तुम्हें 10 से 15 मार्क आ जाएं, फिर कोशिश करो 25 में से तुम्हें 5 मार्क्स आ जाएं, और वर्बल के लिए तुम्हें कुछ ना कुछ जुगाड़ तुगाड़ करना पड़ेगा। इसीलिए वर्बल होना बहुत जरूरी है। और कहानी खत्म नहीं होती। चलो अगर तुम में से कोई बंदा जो वर्बल पसंद नहीं करता, उसको पजल पसंद है, पजल की गजल गा रहे थे सीटी में या नहीं, ठीक है, जुगाड़ तुगाड़ करके तुमने कॉल भी ले लिया, इंटरव्यू कैसे क्रॉस करोगे सांबा? क्या करो, ऐसी वीडियो के नाम होते हैं ना, तेरा क्या होगा कालिया, बाट लग गई, धिनचाक, धक धक हो रेला है, ये वो, पता नहीं पानी पूरी बेच रहे हैं कि एमबीए पढ़ा रहे हैं। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि अगर तुम्हारा वर्बल स्ट्रांग नहीं है तो तुम स्नैप क्यों दे रहे हो? या तो वर्बल स्ट्रांग कर लो, फिर भी तुम कुछ तो कर सकते हो अगर कुछ हो जाए, बट एफर्ट ज्यादा लगेंगे। अब अगर तुम्हारा कॉन्ट वीक है, कोई बात नहीं, वर्बल में खींचो, लॉजिकल रीजनिंग में खींचो, और 20 में से कोशिश करो कि यार 10 राइट हो जाए, 10 राइट हो जाए। टाइमिंग दिया हुआ है, सब दिया हुआ है, नेगेटिव मार्किंग होती है इसमें 25%, मतलब 1 मार्क मिलेगा राइट होने पे और 0.25 मार्क कटेंगे अगर आपने कोई क्वेश्चन इनकरेक्टली अटेम्प्ट किया। अब एक और चीज यहाँ पे बड़ी क्लासिकल चीज है, वर्बल में पता नहीं चलता राइट है या रॉन्ग है। आई एम अ वर्बल फैकल्टी, इवन आई डू द मिस्टेक्स, बिकॉज वर्बल इज ऑल अबाउट थिंकिंग। सेंटेंस करेक्शन सही हो जाएगा, पैराजंबल मेरा सही हो जाएगा, लेकिन आरसी में ऊपर नीचे होता है। लेकिन दुख इस बात का होता है कि लोग नंबर्स में भी गलती करते हैं। भाई अगर तुम्हारा आंसर 4 आ रहा है और ऑप्शन में 4 है ही नहीं, फिर भी क्यों जबरदस्ती टाइम लगा रहे हो, क्यों जबरदस्ती कोई ना कोई ऑप्शन टिक कर रहे हो? नेगेटिव मार्किंग है, और 0 इज ग्रेटर देन -0.25। प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग। 0 तुम्हारा बड़ा है -0.25 से। अगर ये अकल लगाओगे तो यार 1-2 मार्क तो वहीं बच जाएंगे। कॉमन सेंस ही तुम्हें मार्क्स दिला देगी। और एक बहुत बड़ा कुटियाप होगा हर साल वो सी गैंग का होता है, मैं नाम नहीं लूंगा, जितने भी सी वाले हैं, जिनके भी नाम में सी है, वो पहले कुछ होगा, फिर बोलेंगे बच्चों हम तुम्हारे साथ हैं, पेपर साइन करो, ये करें, केस करें। खैर, पाकिस्तान भी सपने लेता रहता है, तो वो भी लोग सपने लेते रहते हैं। अब गाइज यहाँ पे देखो, ये दिखाई दे रहा है तुम्हें बोल्ड में, ये चीज पढ़ो। ये मैं क्यों पढ़वा रहा हूं, क्यों मैंने स्क्रीनशॉट लिया, ताकि तुम अपना दिमाग पहले से ही इस चीज के लिए रेडी रखो। अ कैंडिडेट कैन अपेयर फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 2 टेस्ट फॉर स्नैप 2021। इफ अ कैंडिडेट अपेयर्स फॉर 2 टेस्ट, द हायर स्कोर विल बी कंसिडर्ड फॉर फाइनल परसेंटाइल कैलकुलेशन। ये तो सबको पता है। अब एक कोई रोएगा, मेरे पास पैसा नहीं था तो मैं एक ही दे सका, मेरे पास पैसा था तो मैंने 2 दे दिए। भाई अगर तेरे पास एग्जामिनेशन के पैसे नहीं है तो कॉलेज की 25 लाख 20 लाख फीस कहां से लाओगे? बट ऑब्वियस लोन लोगे ना, तो हिम्मत रखो यार, थोड़ी हिम्मत रखो। A rigorous process that has been statistically tested will be administered to ensure that unique type of questions are framed under a specific topic across the question papers. Normal spread will ensure that there is no unfair advantage to candidate who opt for any specific test, multiple test. This will ensure normalization of the spread of question across section. ये पता है क्यों मैं पढ़ रहा हूं? कई लोग बोलेंगे अरे स्लॉट 2 इजी आ गया,
फ्लॉट 1 डिफिकल्ट था, 3 वालों की वाट लग गई, यहाँ पर उन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है। और यस, एग्जामिनिंग बॉडी ऐसा करती है। क्यों? कई सारे लोग केस करेंगे, एग्जामिनिंग बॉडी के पास सबका प्रूफ होता है, सब कुछ होता है, वो तुम्हारी गलती है, तुमने पढ़ाई नहीं की, तुमने गड़बड़ की है और तुम दोष ढूंढते हो इधर उधर। यहाँ पे क्लियर कट लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नॉर्मली स्प्रेड रहेंगे, तो आगे जाके लिखा हुआ है नो कॉरेस्पॉन्डेंस रिगार्डिंग दिस विल बी इंटरटेन्ड। मतलब वो कुटियापा जो कई सारे लोग कर रहे हैं अभी, हम ये वो करेंगे, वो स्नैप में नहीं चलेगा। आई होप मैंने आपको चीज बता दी, समझा दी। आज के सेशन के बाद आई होप आपको कॉमन सेंस आ गई होगी। अब हम जाएंगे एनमैट के ऊपर। अब अगर आप में से कई लोग नरसी मोंजी, अब अगर आप ये सोचते हैं, बिफोर आई गो ऑन टू दी नरसी मोंजी एनमैट एग्जामिनेशन एंड आई टॉक अबाउट इट, मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं, नरसी मोंजी एनमैट सिम्बोसिस का स्नैप आपको आईएम जैसी क्वालिटी और चीजें दे सकता है। आईएम जैसे क्लासिकल बच्चे रहेंगे, वैसा क्राउड रहेगा, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, पैकेजेस भी आईएम जैसे ही रहेंगे, कम नहीं है, बहुत अच्छे हैं। तीसरी चीज, ये कॉलेजेस मुंबई या महाराष्ट्र में है, पुणे, मुंबई, ऑफ कोर्स उनके और भी कैंपसेस है, बट ये इनके मेन है। और सबसे बड़ी चीज कि यार फीस भी सेम है। अब अगर तुम्हें कल को कोई आदमी बोले कि तुमको आईएम में एडमिशन मिलता है, तो तुम लोन ले लोगे ना? लोन देगा कि बोलोगे नहीं दोगे? नहीं 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 सर, हम क्या करेंगे। हम इंडियंस पता है कैसे हैं, हम 50,000 का मोबाइल ले लेंगे बिंदास, लेकिन जब हम उसे किसी लॉकर में डालेंगे या हम किसी उसे कवर चढ़ाएंगे, तो हम उस पर ना सस्ता कवर लगाएंगे। एक फोन लेंगे 70,000 रुपए का और टेम्पर ग्लास लगाएंगे 30 रुपए का। क्यों? स्क्रीन बचा रहे हैं। खैर, 70,000 के फोन को 30 रुपए का टेम्पर गार्ड बचाएगा, अकल कहां से बचाएगी। अब एनमैट एग्जामिनेशन के बारे में हम बात करेंगे। अब लोग पूछेंगे सर एनमैट एग्जामिनेशन की फीस कितनी है? 20 से 25 लाख दोनों की रेंज है, ठीक है, 20 से 25 लाख दोनों कॉलेजेस की रेंज है। सर हम इतना पैसा कहां से लाएंगे? लोन मिलता है यार, एग्जामिनेशन स्कोर करो, जिंदगी सेट हो जाएगी। पहला पैकेज ही तुम्हारा ऑलमोस्ट महीने का ऑलमोस्ट लाख टच करेगा, फिर तो जिंदगी भर कमाना है ना। यू विल बी अर्निंग होल योर लाइफ एंड देन योर फर्स्ट सैलरी इज जस्ट फॉर 1 ईयर। तुम आगे कंपनी चेंज करोगे, पैकेज बढ़ेगा। बड़ा सोचो। अब ये इसका सेक्शनल है। अब यार एनमैट जो एग्जामिनेशन है वो एक एग्जामिनिंग बॉडी बनाती है, उसका नाम है जी मैक। जी मैक वही एग्जामिनिंग बॉडी है तो तुम्हारा जी मैट भी बनाती है, एंड आई टीच फॉर जी मैट, एंड वो बहुत ही प्यारा एग्जाम है, बहुत ही जबरदस्त एग्जाम है। अब यार देखो, ये जो स्नैप एग्जामिनेशन में सेक्शनल बाइफर्केशन नहीं था, तो किसी को अगर वो पैटर्न जमता तो स्नैप दे ले। लेकिन एनमैट में तुम्हें टाइम की बाउंड्री रहेगी और रेंज रहेगा 12 to 120। ये इस पे ध्यान मत दो, ये लोग कंफ्यूज होते हैं, वो मैं कभी बताऊंगा और सुकून से, शिद्दत से। 36 क्वेश्चंस के लिए तुम्हें 40 मिनट्स मिलेंगे लॉजिकल रीजनिंग में। कॉन्ट के ऊपर 36 क्वेश्चंस होंगे, 52 मिनट्स मिलेंगे। लैंग्वेज स्किल्स पे 36 क्वेश्चंस मिलेंगे, 28 मिनट। अब कई लोग बोलेंगे ना सर ये वर्बल में ना 28 मिनट है, मतलब वर्बल इजी है। इजी नहीं है। जीमैक जो बॉडी है वो जानती है कि वर्बल के क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होते हैं, अगर आते हैं तो, नहीं आते तो कुछ कर नहीं सकते। इसीलिए मैं बोल बोल के थक जाता हूं कि जिस भी एग्जामिनेशन में टाइम की कमी होती है, हर एग्जाम में कमी होती है, सीटी हो गया, सीमैट हो गया, स्नैप हो गया, वर्बल तुम्हारा तुम्हारा बूस्टर है, क्योंकि वर्बल के क्वेश्चन जल्दी होते हैं, कम टाइम में होते हैं। 36 क्वेश्चंस के लिए इसलिए उसने 28 मिनट दिए। अब एक सेंटेंस करेक्शन क्वेश्चन है, वोकैब से रिलेटेड क्वेश्चन है, उसमें कितना टाइम लगता है? 15 से 10 सेकंड। या तो क्वेश्चन आता है या तो नहीं आता। नहीं आता तो बैठे रहो, बैठे रहो, 2 घंटे बैठे रहो तो भी नहीं आएगा। भाई समझो बात को। क्वांटिटेटिव स्किल्स के लिए थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, सबसे ज्यादा टाइम लगता है, कैलकुलेशन होती है, इसलिए उन्होंने उस तरीके से टाइम दिया हुआ है। लॉजिकल रीजनिंग में वर्बल रीजनिंग आती है, कुछ क्वेश्चंस कम टाइम लेंगे, कुछ बहुत जल्दी हो जाते हैं, तो उस हिसाब से उन्होंने 40 मिनट दिए हुए हैं। ये बहुत ही सॉर्टेड एग्जाम है, ये उतना ही टाइम उस सेक्शन के लिए देता है जितना उसको देना चाहिए। अब स्टूडेंट को उस टाइम में खुद को मैनेज करना है। अब जिसका वर्बल वीक है उसके लिए 28 मिनट क्या, उसके लिए 60 मिनट भी कम पड़ेंगे, और जिसने वर्बल पढ़ा हो जाएगा। जिसका कॉन्ट वीक है उसके लिए 52 मिनट्स क्या, 120 मिनट्स भी कम पड़ेंगे। सिमिलरली दिस काइंड ऑफ स्टफ इज देयर। अब लोग बोलेंगे सर पढ़ाई, अगर तुमने कैट की पढ़ाई की है, अगर तुमने सीटी की पढ़ाई की है, अगर तुमने सीमैट की पढ़ाई की है, या
किसी और एग्जाम की पढ़ाई की है, गेस व्हाट, तुमने स्नैप की और एनमैट की भी पढ़ाई की है। क्वेश्चन सेम है, सेम टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। अब लोग बोलेंगे सर अब एक और सवाल आएगा, सर एनमैट इजी है या स्नैप इजी है? तुम वही हो ना जिसने सीटी एग्जामिनेशन इसलिए दिया था, या क्यों दिया था? क्योंकि वो कैट से इजी होता है। वही हो ना तुम। क्या हुआ? एग्जाम कभी इजी या डिफिकल्ट नहीं होता, तुम्हारी पढ़ाई होती है, तुम्हारी प्रिपरेशन होती है। ये लूजर्स वाली अप्रोच होती है, मैं सीटी दे रहा हूं क्योंकि सीटी का पेपर इजी है। ठीक है भाई, इतिहास गवाह है कि जिन लोगों ने सीटी इजी समझ के दिया उनके साथ उनके कपड़े कैसे उतरे। खैर, अब ये 108 क्वेश्चन है 120 मिनट के। अब ये स्कोर का रेंज 12 से 120 कैसा है कि वो, खैर लेट्स नॉट गेट इनटू दैट, जस्ट फोकस ऑन गेटिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस राइट, बिकॉज कई लोगों को पल्ले नहीं पड़ेगा अभी, और मैं चीजें सिंपल रखना चाहता हूं। दिस इज एन इंट्रोडक्शन। अब वही सिलेबस आ गया कि भाई वर्बल की बात करते हैं, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, पैरा फॉर्मिंग यानी पैरा जंबल, या पैरा कंप्लीशन, एरर आइडेंटिफिकेशन, सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस कंप्लीशन, वही सेंटेंस कंप्लीट करो यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स, ये तुम्हारे वर्ड्स होंगे मिसिंग, एनोलॉजी, सिमिलैरिटी, सिनोनिम, एंटोनिम, वोकैब। वर्बल को 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, एक होता है रीडिंग, एक होता है ग्रामर और एक होता है वोकैब। उसी चीज को अलग घुमा घुमा के पूछते हैं वो लोग। नाउ दिस इज फॉर क्वांट, नंबर प्रॉपर्टीज, अरिथमेटिक, अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी, डीआई, केस लेट, डेटा सफिशिएंसी, प्रॉफिट लॉस। अब इसमें ना बेसिकली इसमें कौन सा ऐसा टॉपिक है जो तुम्हें नहीं पता या तुमने अब तक नहीं पढ़ा? सब पढ़ा है ना? ये आपका लॉजिकल रीजनिंग, क्रिटिकल रीजनिंग अलग से दिया हुआ है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, वर्बल से ज्यादा फोकस रहता है ये एग्जाम। एनालिटिकल पजल ऑफ कोर्स, डिडक्शन, अदर रीजनिंग, इसकी रीजनिंग बिल्कुल सीटी जैसी है, सीमैट जैसी है। एनमैट एग्जामिनेशन इज अगेन गाइस इज इजी टू मॉडरेट, थोड़ा बहुत कुछ क्वेश्चन टफ होते हैं, कुछ क्वेश्चन इजी भी होते हैं। NMAT examination is also applicable, or you can apply in NMAT examination and get more than 220 to 30 marks। केजे सुमाया भी एक्सेप्ट करता है। बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो NMAT का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं। मैंने 2 वीडियो बनाए हैं, NMAT पे भी बनाया, स्नैप पे भी बनाया मैंने, जैट पे भी बनाया मैंने, सब एग्जामिनेशंस पे वीडियोस बना के डाले हुए हैं। सो दिस इज अबाउट NMAT एंड स्नैप। नाउ students who are enrolled and students with Vision MBA and students not just who are enrolled but also going to appear in SNAP and NMAT examination, आप मुझे पर्सनल पे टेक्स्ट करें और मुझे बताएं कि आपकी क्या वीकनेस है, उस हिसाब से मैं प्लानिंग करूंगा। और क्वांट फैकल्टी विल बी कॉलिंग ईच वन ऑफ यू। जो रेगुलर सेशंस है वो तो हमारे होते रहेंगे वीकेंड पे, क्योंकि अभी तक हमारा सिलेबस तो सारा खत्म हो चुका है, कई बार खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी कैट तक हम लोग सेशंस करते रहेंगे। सो सैटरडे संडे को हम रेगुलर लेक्चर्स करते रहेंगे, लेकिन स्नैप और एनमैट्स के लिए स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए वो वाले सेशंस मैं अलग से स्केड्यूल करूंगा जो लोग अपेयर कर रहे हैं, या और कोई जो टॉपिक उनका वीक है, और अगर नहीं पॉसिबल हुआ कुछ तो मैं उनको 1-to-1 भी दूंगा, बट ओनली टू द इनरोल्ड स्टूडेंट्स। तुम्हारा एग्जामिनेशन का जो जो जिम्मा है वो मुझ पे है। इट्स अ टीम एफर्ट, बट प्लीज बी सेंसिबल, प्लीज बी लॉजिकल। मैं जादूगर नहीं हूं, और अगर तुम्हें जादू देखना है तो बहुत सारे सी बैठे हैं जो जादू दिखा रहे हैं, मैं जादू नहीं दिखाता। ठीक है? So this is it guys, I want to keep it simple, I want to keep it bang on. This is about NMAT and SNAP. I gave you the idea. If there is any